Hello everyone, online classes, subject science, class 6, chapter 5, part 2, separating insoluble solids from liquids. The following method are used for separating insoluble solid from liquid: sedimentation and dentation. Sedimentation and dentation is generally used for separating coarse particles of a solid from a liquid which are insoluble in the liquid. For example, the coarse particles of sand in muddy water can be separated by dentation. अब तलछट और गिरावट। तलछट और सड़न का उपयोग आमतौर पर एक ठोस पदार्थ के ठोस कणों को एक तरल से अलग करने के लिए किया जाता है जो तरल में अघुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए कीचड़ युक्त पानी में रेत के मोटे कणों को अलग अलग करके अलग किया जा सकता है। Before cooking, rice, pulses, etc. are washed with water. The washed water is removed while decaying. खाना पकाने से पहले चावल, दाल आदि को पानी से धोया जाता है। धोने के पानी से हटा दिया जाता है, उसका निस्तारण किया जाता है। लोडिंग ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन द heavier coarser particles settle down quickly. Fine particles of clay settle down very slowly. The finer particles can be made to settle faster by dissolving a small quantity of alum in muddy water. This method is called loading. When alum is added to muddy water, the finer particles get loaded with alum particles and from larger aggregates. This makes them to settle down faster. अवसादन के दौरान भारी मोटे कणों जल्दी से बस जाते हैं। मिट्टी के महीन कण बहुत धीरे धीरे बसते हैं। मैले पानी में थोड़ी मात्रा में फिटकरी को घोलकर तेज़ी से बसने के लिए महीन कणों का बनाया जाता है। इस विधि को लोडिंग कहा जाता है। जब फिटकरी को गंदे पानी मिलाया जाता है तो महीन कण फिटकरी के कणों से भर जाते हैं और बाँस बनाते हैं। यह उन्हें तेज़ी से बचने के लिए बनाता है और नीचे पानी के नीचे तल में बैठ जाता है। फिल्ट्रेशन This method is used for separating fine insoluble solid particles from the liquid. In this method, the mixture is allowed to pass through a filter. A filter is a medium with fine pores. The insoluble solid particles are retained by the filter and the clear liquid is collected as the filtrate. छानने की विधि। इस विधि का उपयोग तरल से ठीक अघुलनशील ठोस कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। यह विधि में मिश्रण को एक फिल्टर से गुजरने की अनुमति होती है। एक फिल्टर ठीक ताकने के साथ एक माध्यम होता है। अघुलनशील ठोस कणों को फिल्टर द्वारा बनाए रखा जाता है और स्पष्ट तरल को रूप में एकत्र किया जा सकता है। कॉमनली यूज्ड फिल्ट्रेट आर इस्तेमाल किए जाने वाले फिल्टर्स: ए पीसेस ऑफ मुस्लिन क्लॉथेस, संगीत के कपड़े का एक टुकड़ा, फिल्टर पेपर, छन्ना वाला कागज, ए लेयर ऑफ कॉटन और ए लेयर ऑफ रिवर बेड्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए फिल्टर. Nowadays special filters are used to obtain high purity drinking water. अब कपास की एक परत या नदी के बिस्तरों की एक परत को फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब एक दिन विशेष की पानी के पीने की उच्च शुद्धता प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। Infiltration size of the pores in the filter is very important for a good filtration. The pores in the filter should be smaller than the size of the particles to be removed. Filtering tea by using a strainer is also an example of filtration. Here the tea leaves are retained by the strainer. Tea strainer cannot be used for filtering turbid water.
निस्पंदन में फिल्टरों में छिद्रों का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छे निष्पादन के लिए छिद्र फिल्टर को हटाने के लिए कण के आकार से छोटा होना चाहिए। एक छलनी का उपयोग करना चाहिए। जैसे एक छलनी का उपयोग चाय को छानने में निष्पादन का एक उदाहरण होता है। यह चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा बनाए रखा जाता है। टर्बिड वाटर को छानने के लिए चाय स्ट्रेनर का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। फैक्ट स्ट्रिप। Our kidney act as filters to clean the blood. Waste chemicals dissolved in the blood pass through a membrane in the kidney and are extracted as urine. रक्त को साफ करने के लिए एक फिल्टर में हमारी किडनी जो रक्त में घुले अपशिष्ट रसायन गुर्दे में झिल्ली से गुजरते हैं और मूत्र के रूप में उत्सर्जित होते हैं। Churning. This method is used for separating lighter particles of a solid suspension in a liquid. For example, butter can be obtained by churning. Cream can be obtained from fresh milk by churning. Churning can be done by hand using a stirrer or by using a mixer. और लोडर। इस विधि का उपयोग तरल में निलंबित ठोस के हल्के कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए दही को मथ कर पूर्ण वसा वाले दूध से प्राप्त मक्खन प्राप्त किया जा सकता है। मलाई को ताज़ा दूध से प्राप्त किया जा सकता है। मंथन हाथ से किया जा सकता है। एक रकाब का उपयोग करके या मिक्सर कर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। Separating a soluble solid from its solution. The following methods are used for separating a soluble solid from its solution. निम्नलिखित विधियाँ पर सॉल्यूशन से एक ठोस सॉलिड का उपयोग किया जाता है। उपाय: Evaporation is used to recover a solid substance from its solution. Evaporation can be made quicker by heating the solution. बाष्पीकरण का उपयोग इसके समाधान से एक ठोस पदार्थ में पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बाष्पीकरण किया जा सकता है जल्दी से घोल को गर्म करके। फैक्ट स्ट्रिप। Painting uses the separation process of evaporation. The wet paint is a mixture of color, pigment and solvent. When the solvent dries and evaporates, only the color pigment is left behind. पेंटिंग बाष्पीकरण की पृथक्करण प्रक्रिया का उपयोग करती है। गीला पेंट रंग, वर्णक और विलायक का मिश्रण करती है। जब विलायक सूख जाता है तो बाष्पित हो जाता है तो केवल रंग वर्णक पीछे रह जाते हैं। Condensation. Have you seen droplets of water falling from the cloud during rain? This is because water vapor in the air gets closer and from clouds. When the clouds enter a colder region, the water vapor get cool and forms water droplets. These droplets comes down as rain. The process by which vapor of any liquid is converted into liquid by cooling is called condensation. क्या आप बारिश के दौरान बादलों से गिरने वाली पानी की बूंदों को देखा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा में वाष्प के कारण करीब पहुंच जाता है और बादलों का निर्माण करता है। जब बादल ठंडे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो जल वाष्प शांत हो जाता है और पानी की बूंदों का निर्माण करता है। ये बूंदें बारिश के रूप में नीचे आती हैं और किसी तरल पदार्थ के वाष्प को ठंडा करके तरल में परिवर्तित हो जाती हैं और ये संक्षेपण हो जाती हैं। फैक्ट स्ट्रिप। Snowflakes are ice crystals that are formed high in the clouds when water freezes. अब स्नोफ्लैक बर्फ़ के क्रिस्टल होते हैं जो बादल में उच्च बनाते हैं और जब पानी जम जाता है। वाटर एज ए सॉल्वेंट।
Water can dissolve many kinds of substance. That is why water is commonly called as universal solvent. There are, however, many substances which do not dissolve in water. The substances which dissolve in water are called soluble in water. Those which do not dissolve in water are called insoluble in water. अब एक विलायक के रूप में पानी कई तरह के पदार्थों को घोल सकता है, इसलिए पानी को आमतौर पर सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। हालांकि कई पदार्थ हैं जो पानी में नहीं घुलते। जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें पानी का घुलनशील कहा जाता है। जो कहते हैं पानी में घुलने को पानी में अघुलनशील कहा जाता है। ए लिक्विड सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर completely in all proportion is called miscible liquid. For example, alcohol and miscible. A liquid substance that does not dissolve in water and forms a separate layer is called immiscible liquid. For example, oils are immiscibles. एक तरल पदार्थ जो पानी में पूरी तरह से सभी अनुपात को घुला जाता है उसे गलत तरल कहा जाता है। उदाहरण के लिए शराब गलत है। एक तरल पदार्थ जो पानी में नहीं घुलता और एक अलग परत बनाता है वो विसर्जित करने वाला तरल होता है। उदाहरण के लिए तेल अपरिपक्व होते हैं। वाटर डिसॉल्व ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन इट। पानी इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घोलता है। द लिमिटिंग अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट वाटर कैन डिसॉल्व at any temperature and pressure is described by a term called solubility of that substance in water. Before we describe the term solubility, we would like you to know about the following term. किसी भी पदार्थ को पानी की मात्रा जो किसी भी तापमान दबाव पर घुल सकती है, पानी में उस पदार्थ का घुलनशीलता नामक शब्द से वर्णित होती है। इससे पहले कि हम शब्द की विलयता का वर्णन करें और हम चाहेंगे कि आप निम्नलिखित शब्दों के बारे में जानें। Solidity, the substance which is dissolved in water or any other solvent is called solute. Different substance dissolved in water to different extents. विलय वह पदार्थ जो पानी या किसी अन्य विलायक में घुल जाता है तो सोल्यूट कहलाता है। अलग अलग पदार्थ पानी में अलग अलग विलुप्त हो जाते हैं। सॉल्यूशन, द होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट एंड ए सब्सटेंस सॉल्युबल इन इट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। समाधान, पानी का एक सजातीय मिश्रण या किसी अन्य विलायक और इसमें घुलनशील एक पदार्थ को एक समाधान कहा जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. Saturated solution, एक सॉल्यूशन जिसमें या तापमान पर अधिक विलय नहीं घुल जा सकता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट सब्सटेंस डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट एट एनी गिवन टेम्परेचर। विभिन्न पदार्थ पानी में या किसी भी तापमान पर अलग अलग हद तक घुल सकते हैं। ये किसी भी समय अन्य विलायक बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, sugar dissolves in water more than common salt. The extent of dissolution of any substance is described in terms of solubility. उदाहरण के लिए चीनी आम नमक से अधिक पानी में घुल जाती है। किसी पदार्थ का विघटन की सीमा को घुलनशीलता का संदर्भ में वर्णित किया जाता है, वह विलय होता है। द मैक्सिमम मास ऑफ ए सॉल्यूटेड that can be dissolved in 100 gram of the solvent at any specified temperature is called its solubility. एक विलय का अधिकतम तापमान जिसे किसी भी निर्दिष्ट समय में विलायक के 100 ग्राम में भंग किया जा सकता है, तापमान को इसकी घुलनशीलता कहा जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूटेड जनरली इंक्रीज विथ द राइज इन टेम्परेचर। एक ठोस विलय की विलयता तापमान में वृद्धि के साथ आमतौर पर बढ़ सकती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर इज गिवन बिलो।
कमरे के तापमान पर कुछ सामान्य पदार्थों की घुलनशीलता नीचे दी गई है। सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी, शुगर 204 सेंटीग्रेड, कॉमन सल्ट 36, अमोनियम क्लोराइड 39, कॉपर सल्फेट 23। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, पानी में गैसों की घुलनशीलता। गैसेस डिसॉल्व इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट, गैस पानी में छोटी हद तक घुल सकती है। ऑल एडिक्टेड ड्रिंक कंटेन डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, सभी वलित पेय में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक्वाटिक प्लांट्स यूज डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए घुलित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। The oxygen dissolved in water is taken up by fish through its special organ called gills. पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को उसके विशेष अंगों के माध्यम से मछली द्वारा लिया जाता है। Aquatic animals survive on the oxygen dissolved in water. और वो गिल्स के द्वारा लेती हैं। जलीय जंतु पानी में घुली ऑक्सीजन पर जीवित रहते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीज विथ ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ्टन ड्यूरिंग समर। फिश इन सोलो पॉन्ड्स डाई, दिस इज बिकॉज द वाटर इन द पॉन्ड्स गेट्स वार्म ड्यू टू समर हीट। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज एंड द फ्रेश फिश इन दैट पॉन्ड डाई। पानी में गैसों को घुलनशीलता तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है। अक्सर गर्मियों के दौरान उथले तालाबों में मछली डिग ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मियों के कारण तालाब में पानी गर्म होता है। परिणामस्वरूप पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उस तालाब में मछलियाँ मर जाती हैं। थैंक यू।